السلام علیکم، میں رضوان صدیق ہوں۔ آج کا یہ لائیو سیشن ریحان اے آئی ایجوکیشن کے ٹریننگ پروگرام کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس ٹریننگ کا مقصد ہمیں جدید دور کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی ٹیکنالوجی سے عملی طور پر جوڑنا اور اس کا مثبت استعمال سکھانا ہے۔ آج کی اس گفتگو کا مرکزی موضوع ہے دا سیکرٹ ٹو بلڈنگ لاسٹنگ ہیبٹس۔ ہماری زندگی میں کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہماری روزمرہ کی عادتوں پر ہوتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح نئی اور اچھی عادتیں بنا سکتے ہیں اور ان پر قائم رہ سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم براہ راست اے آئی چیٹ جی پی ٹی سے اس موضوع پر تفصیلی گفتگو کریں گے اور ان سے اہم سوالات پوچھیں گے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے اے آئی پارٹنر کو سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیلو چیٹ جی پی ٹی، Hi, I'm here. آئی ہوپ یو آر ہیونگ اے گریٹ ڈے۔ Hope your day is going well. What's on your mind? آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم اور دلچسپ موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں، پائیدار عادتیں چلو بات شیئر کر جی جی سن رہا ہوں۔ پائیدار عادتیں بنانے کا راز، میں آپ سے اس حوالے سے کچھ سوالات کروں گا تاکہ ہماری آڈینس اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ ٹھیک ہے، کیا آپ کیا بالکل آپ تیار پوچھیے۔ ہیں؟ جی ہاں، میں پوری طرح تیار ہوں۔ پہلا سوال پوچھے۔ اوکے جی، پہلا سوال ہے، ہماری شخصیت اور کامیابی کی تعمیر میں عادتوں کا کیا بنیادی کردار ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں۔ عادتیں شخصیت کی بنیاد ہوتی ہے۔ جو کام ہم روز دہراتے ہیں وہی وقت کے ساتھ ہمارے کردار اور نتائج کو بناتے ہیں۔ اچھی عادتیں کامیابی کی سمت لے جاتی ہے، جبکہ بری عادتیں روک بن جاتی ہے۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا، میرا اگلا سوال ہے، اکثر لوگ جوش و خروش میں نئی عادت شروع کرتے ہیں لیکن کچھ دنوں بعد چھوڑ دیتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ایک منٹ، یہ اہم سوال ہے۔ اکثر لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ صرف جوش سے شروع کرتے ہیں مگر مستقل مزاجی کا منصوبہ نہیں بناتے۔ شروع میں بہت بڑا ہدف رکھ لیتے ہیں اور جلد ہی تھک جاتے ہیں۔ چھوٹے قدم اور مسلسل عمل زیادہ کارگر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ایک دم سب کچھ بدلنے کی کوشش کریں۔ عادت کو روزمرہ کا حصہ بنانے سے اسے نبھانا آسان ہو جاتا ہے۔ کیا آپ اس کی مثال بھی سننا چاہیں گے؟ جی ضرور سنائیں مثال۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی روز صبح صرف 10 منٹ واک شروع کرے تو وہ آہستہ آہستہ اس کی روٹین بن جاتی ہے۔ جسم عادی ہو جاتا ہے، مزاج بہتر رہتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وقت یا فاصلہ بڑھانا آسان لگتا ہے۔ چھوٹے آغاز سے تسلسل بنتا ہے اور تسلسل سے پائیدار عادت بنتی ہے۔ کیا یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو واک کرنے کی عادت نہیں ہے یا وہ سوئی رہتے ہیں تو وہ کس طرح یہ اپنے سٹارٹ لے سکتے ہیں اس عادت کو بنانے کے لیے؟ میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ مسئلہ عام ہے اور حل کافی عملی ہے۔ پہلے دن صرف 5 یا 10 منٹ کا ہدف رکھیں۔ گھر کے اندر بھی چل سکتے ہیں۔ رات کو جوتے اور کپڑے تیار رکھیں۔ صبح ایک ہی وقت پر اٹھیں۔ اگر ممکن ہو تو کسی دوست یا گھر کے فرد کے ساتھ واک کریں۔ اور یاد رکھیں، مستقل مزاجی مکمل ہونے سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کسی دن رہ جائے تو دوسرے دن دوبارہ شروع کر لیں۔ چھوٹے چھوٹے قدمی وقت کے ساتھ مضبوط عادت بنا دیتے ہیں۔ بہت اچھی بات کی آپ نے۔ اچھا، میرا اگلا سوال ہے کہ دماغ کے نقطۂ نظر سے ایک نئی عادت کو مکمل طور پر بننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
चेक करता हूँ। ये बहुत अच्छा सवाल है। तहकीक के मुताबिक वक्त मुख्तलिफ होता है, लेकिन एक मुताले के मुताबिक औसतन तकरीबन 67 दिन लग सकते हैं। कुछ को कम, कुछ को ज्यादा। बेहतर है दिन गिनने के बजाय रोज अमल पर तवज्जो दे, और अगर किसी दिन रह जाए तो मायूस ना हो, बस अगले दिन दोबारा शुरू कर दे। तसलसल ही दिमाग को नई आदत अपनाने में मदद देता है। क्या अगला सवाल पूछूं? जी, जी, मैं पूछता हूँ सवाल। अब मुझे ये बताएँ कि जब इंसान सुस्ती या मसरूफ़ियत की वजह से अपनी रूटीन तोड़ बैठता है, तो दोबारा मुस्तकिल मज़ाजी कैसे हासिल की जाए? एक मिनट, अच्छी सवाल है। रूटीन टूट जाना नाकामी नहीं होती। खुद को इल्जाम देने के बजाय फौरन दोबारा शुरू करें। छोटे कदम लें और वजह जानने की कोशिश करें कि रूटीन क्यों टूटी। मुस्तकिल मिजाजी का मतलब ये नहीं कि कभी रूटीन ना टूटे, बल्कि ये है कि टूटने के बाद जल्दी वापस आ जाए। कभी खुद को बहुत आसान हदफ दें, जैसे 5 मिनट का मामूल, और इस बात पर गौर करें कि रूटीन क्यों टूटी थी, ताकि अगली बार इसी रुकावट को बेहतर अंदाज से संभाल सकें। यही छोटे छोटे कदम आगे चलकर मजबूत आदत बनते हैं। कैसा लग रहा है ये सुनकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे आप जवाब दे रहे हैं। अ, मेरा अगला सवाल है कि हम अपनी पुरानी और बुरी आदतों को ख़त्म करके इनकी जगह नई और अच्छी आदतें कैसे मुंतकिल कर सकते हैं? एक मिनट, चेक कर रहा हूँ। अहम सवाल है। पहले ये पहचाने कि बुरी आदत कब और क्यों होती है, फिर इसकी जगह एक छोटी और अच्छी आदत लाएं। मसलन जंक फूड कम करने के लिए घर में कम रखें और पानी की बोतल करीब रखें। नई आदत को बहुत आसान बनाएं, जैसे 2 मिनट मुताला, फिर आहिस्ता बढ़ाएं। अ, माहौल को भी जी, जी, बोलें, बोलें आप। माहौल को भी अपने मकसद के मुताबिक बनाएं और छोटी कामयाबियों को नोट करें। आहिस्ता आहिस्ता पुरानी बुरी आदत की जगह नई मुस्बत आदत मजबूत हो जाती है। यही तसलसल देर पा तब्दीली लाता है। कैसा लगता है, ये तरीका आप आजमा सकते हैं? जी, अच्छा इसको मज़ीद और डिटेल से बताएँ ज़रा, ताकि ऑडियंस को मज़ीद इसकी समझ आ जाए। देख रहा हूँ। जरूर। एक मिसाल से समझते हैं। अगर किसी को रात को मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत है, तो सिर्फ कहना कि आज से नहीं करूँगा अक्सर नाकाफी होता है। पहले वजह देखें, क्या बोरियत है या नींद की कमी। फिर उसकी जगह नई आदत लाएं, मसलन मोबाइल को बिस्तर से दूर रखना और सोने से पहले 10 मिनट किताब पढ़ना या अगले दिन की प्लानिंग करना। जंक फूड के लिए घर में सेहतमंद चीजें रखें ताकि अच्छा इंतखाब आसान हो जाए। एक वक्त में सिर्फ एक आदत बदलने की कोशिश करें। छोटी कामयाबियों को नोट करें, जैसे एक हफ्ता मुसलसल अमल। ये छोटे छोटे इकदामात वक्त के साथ बड़ी और मुस्बत तब्दीली लाते हैं। आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मददगार लगता है? ये बहुत अच्छा आपने इसका जवाब दिया है। अच्छा मेरा जो अगला सवाल है, हमारे इर्द-गिर्द की फ़ज़ा या एनवायरनमेंट हमारी आदतों को मज़बूत बनाने में कितना अहम किरदार अदा करता है क्या? देख रहा हूँ। बहुत अहम सवाल है। माहौल आदतों पर गहरा असर डालता है। अगर आपके इर्द गिर्द हर वक्त तवज्जो बटाने वाली चीजें हों, तो अच्छी आदत मुश्किल से बनती है। लेकिन अगर माहौल सहारा दे, जैसे किताब सामने रखी हो और मोबाइल साइलेंट हो, तो अमल आसान हो जाता है। लोग भी माहौल का हिस्सा है, लिहाजा ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारें जो आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करें। मजबूत आदतें मजबूत माहौल से बनती है। क्या आप अपने माहौल में कुछ छोटी तब्दीलियां आजमाने के लिए तैयार हैं? हुँ, बहुत अच्छा सवाल आगे आ रहा है। आज के इस डिजिटल दौर में हम टेक्नोलॉजी और एआई का इस्तेमाल करते हुए अपनी आदतों को कैसे ट्रैक कर सकते हैं? चेक करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। आज टेक्नोलॉजी और एआई अच्छी आदत बनाने में मदद दे सकती है। हैबिट ट्रैकर ऐप्स में आप रोजाना आदतें नोट करके पेशरफ देख सकते हैं। एआई असिस्टेंट्स याद दहानियाँ दे सकते हैं, शेड्यूल बनाने में मदद करते हैं और आपकी कारकर्दगी का जायजा भी देते हैं।
कैलेंडर ऐप्स, टू डू लिस्ट्स और फोकस टाइमर्स तवज्जो और मुस्ततिल मिजाजी बेहतर बनाते हैं। अगर टेक्नोलॉजी को सही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो आदतें बनाना पहले से आसान हो जाता है। क्या आप किसी खास ऐप या टूल के बारे में जानना चाहते हैं? नहीं, शुक्रिया। आपके साथ इस मौजू पर इतनी तफसीली और हिकमत से भरपूर गुफ्तगू करके बहुत खुशी हुई। आपके दिए गए नकात हम सब के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। गुड लक एंड गुड बाय। मोहतरम नाजरीन, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने देखा कि किस तरह हम एआई के साथ बामकसद गुफ्तगू करके अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकते हैं। रेहान एआई एजुकेशन की इस बेहतरीन ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद भी यही है कि हम सब एआई टूल्स के माहिर बनें और इन्हें अपनी तलीमी और अमली ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको पायदार आदतें बनाने से मुतल्लक ये तमाम सवाल और जवाब पसंद आए होंगे। अपने कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।